عضوی محکمہ ہیلتھ، تعلیم، سوشل ویلفیئر کی گرانٹس پر بحث ہوئی، جبکہ متعلقہ وزیر سکینہ یتو نے ممبران کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے آج خود ایک سوال پوچھا اور بعد میں کئی سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ جموں سے جاوید مہرا۔ آج ہاؤس کی شروعات سے پہلے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی نشست سے آگے جا کر ایوان میں ممبران سے ملاقات کی۔ اس دوران ایوان میں موجود ممبران بھی وزیر اعلیٰ سے ملنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے اور سب کی کوشش رہی کہ ان کے کچھ مسئلے، کچھ معاملے وزیر اعلیٰ انہیں سنے اور ان کے ساتھ تصویر بھی کھینچے۔ یہ معاملہ لگ بھگ 5 سے 7 منٹ تک ایوان میں چلتا رہا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور ممبران وہاں بھی ہاؤس کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے تک ان سے ملاقات ہوئے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ کل ہاؤس میں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک 10 بجے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی صدارت میں ایوان کی کارروائی شروع ہوئی۔ آج ہاؤس کی کارروائی میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر اعلیٰ نے خود نہ صرف پہلے سوال بلکہ بعد میں کئی سوالات کا جواب دیا۔ اس دوران احسن طریقے سے ہاؤس کی کارروائی چلتی رہی۔ آج 10ویں روز حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے بیچ ہنسی مذاق بھی ہوا، جن میں سب سے آخری سوال پر لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے پوچھا، جس پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے پڑھ کر جواب سنایا۔ اس سوال پر نائب وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ہنسی مذاق بھی ہوا اور ایوان میں سبھی ممبران کے چہروں پر ہنسی بھی نظر آئی۔ وہیں آج ایوان میں ضمنی سوالات پر ممبران کے بیچ پہلے میں کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملا۔ وہیں اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ممبران کو بحث تقریر کرنے پر ٹوکا اور نصیحت دی کہ وہ وقفہ سوالات کے دوران صرف سوال تک ہی محدود رہیں۔ آج 10ویں روز وقفہ سوالات میں ممبران نے KS افسران کی ٹیم مستقل حیثیت، جموں کشمیر لداخ میں تقسیم کے بعد اثاثوں کی تقسیم، کھیل کے میدانوں کی بہتری، صفائی کرمچاریوں کی مستقلی، زرعی زمین کے استعمال، سیاحت کے فروغ اور گریز کے لیے قومی شاہراہ پر سوالات کے ذریعے نکات ابھارے۔ ممبر اعجاز احمد جان نے پہلا سوال جو جونیئر KS آفیسران کی نیم مستقلی حیثیت 2018-2019 کے امتحانات میں تاخیر اور نصاب کی تبدیلی کے متعلق پوچھا۔ جواب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مانا کہ تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس پر کام ہو رہا ہے اور اس ضمن میں فائنل ڈرافٹ تیار ہے، اور ممبر کو یقین دلایا کہ 1 مہینے کے اندر یہ پروسیس پورا کر لیا جائے گا۔ وہیں دوسرے سوال جو کیسر جمشید لون نے ریاست جموں کشمیر کے 2 حصے ہونے کے بعد اثاثوں کی تقسیم کے متعلق پوچھا۔ وہیں ممبر موہن لال نے کھیل کود کے متعلق ان کے علاقے کے متعلق سوال پوچھا۔ حالانکہ وزیر ستیش شرما نے انہیں جواب بھی دیا، لیکن ممبر موہن لال نے جواب کو ناکافی اور غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ زمین پر اخنور کے اسٹیڈیم اور دیگر کھیل کود کے میدانوں کی حالت بد سے بدتر ہے اور اس ضمن میں انکوائری کی مانگ بھی کی۔ جواب میں وزیر موصوف ستیش شرما نے ممبر کو یقین دلایا کہ وہ ایک ساتھ مل کر اسٹیڈیم اور دیگر کھیل کود کے میدانوں کا دورہ ان کے علاقے اخنور میں کریں گے اور اس موقع پر جا کر فیصلہ لیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو معاملے کی چھان بین بھی کر لی جائے گی اور آخرکار کس وجوہات اور کس کی ذمہ داری میں اسٹیڈیم کی حالت بدتر ہوئی ہے۔ وہیں ممبر ڈاکٹر بھارت بھوشن نے بھی کٹھوا میں صفائی کرمچاریوں کی کمی اور 7% اسامیاں خالی ہونے پر سوال اٹھایا۔ سوال پر وزیر موصوف سکینہ یتو نے پڑھ کر جواب سنایا۔ اس معاملے میں معراج ملک اور بلونت مند کوٹیا نے بھی صفائی کرمچاریوں کو ملنے والی اجرت اور ان کے علاقوں میں ٹھیکیداروں کے ذریعے ان کا ایکسپلائٹیشن اور خاص طور پر کمی کا مدعا ایوان میں ابھارا۔ ایوان میں آج ممبر راجیو جسروڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوال جو انہوں نے سرکاری زمینوں پر قابض لوگوں کے متعلق پوچھا اور مانگ کی کہ سرکار زمینوں پر قابض افراد کو کب تک زمین چھڑائے گی۔ جواب میں وزیر موصوف سکینہ یتو نے یقین دلایا کہ سرکار نے اس ضمن میں زمینوں کے قابض افراد کے خلاف نکیل کسنا شروع کر دی ہے اور جلد ہی باقی بچے افراد کے خلاف بھی سخت ایکشن لے کر سرکاری املاک کو خالی کروایا جائے گا۔ اس ضمن میں RS پٹھانیہ نے بھی ضمنی سوال پوچھا۔ گریز کو نیشنل ہائی وے نہ دیے جانے کا مدعا آج ممبر نذیر گریزی نے زور شور سے اٹھایا اور نائب وزیر اعلیٰ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ حالانکہ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ مدعا انہوں نے مرکز کے ساتھ اٹھایا ہے، لیکن ممبر مطمئن نہیں ہوئے تو نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ اس بار ممبر نذیر احمد گریزی کو دلی اپنے ساتھ لے جائیں گے، جس پر تمام ہاؤس میں ہنسنے کی آواز گونجی۔ اس ضمن میں نظام الدین بٹ، ہلال احمد لون نے بھی ضمنی نکات ابھارے۔ ممبر میر سیف اللہ نے آج ایوان میں ان تمام منظور نظر کاروباریوں، انڈسٹریلسٹ کو زمین دیے جانے اور ان کو کے متعلق سوال پوچھا۔ جواب میں
खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा कर दिया कि किसी को भी जमीन नहीं दी गई है, जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दी जाती है और आगे लीज पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ही देता है। वजीर आला ने मेंबर को मशवरा दिया कि अगर आपको अभी भी कुछ खदशात हैं तो आप एक नया सवाल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मुतालिक पूछें और जवाब मिल जाएगा। वहीं अली मोहम्मद सागर के सवाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहरी श्रीनगर में महकमा सयाहत को बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। महकमा सयाहत की प्रमोशन के लिए श्रीनगर के सभी जगहों का प्रमोशन करती है। वहीं तनवीर सादिक की तरफ से उभारे गए 4 चिनारी की हालत जार पर वजीर आला ने कहा कि इसमें अदालत आलिया के हुक्म से बाहर जो कुछ होगा वो सब कुछ किया जाएगा। आखिरी सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने कश्तवाड़ नागसेनी में खुद रोजगार स्कीमों के मुतालिक पूछा। जवाब में नायब वजीर आला ने लंबे जवाब को ऐवान में पढ़कर सुनाया। वक्फा सिफर में मेंबरान ने उनके इलाकों के मुतालिक मामलात को हाउस में उभारा। आज हाउस में तालीम, सेहत आमा, सोशल वेलफेयर के महकमों की ग्रांट्स पर बहस हुई। ऐवान में मेंबरान ने वक्त बढ़ाने पर स्पीकर से फैसला लेने को कहा ताकि मेंबरान को ऐवान में बोलने का मौका मिले। महकमों की ग्रांट्स में बहस की शुरुआत मुबारक गुल, पवन गुप्ता, जस्टिस हसनैन मसूदी, मुजफ्फर इकबाल, पीरजादा मोहम्मद सईद, अल्ताफ अहमद कुल्लू, विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, एहसान परदेसी, सज्जाद गनी लोन, इरफान अहमद, मोहन लाल, तारिक हमीद कर्रा, रफीक अहमद नायक, सज्जाद शाहीन, शेख खुर्शीद अहमद और शबीर अहमद कुले, रणधीर सिंह और सलमान अली सागर, जावेद अहमद मिर्चाल, डॉक्टर रामेश्वर सिंह और सज्जाद शफी उड़ी ने हिस्सा लिया। बाद में वजीर मौसूफ सकीना यत्तू ने बहस का जवाब दिया। इसके साथ ही शनिवार तक हाउस की कार्रवाई को स्पीकर ने मुलतवी कर दिया। असेंबली इजलास पुरअमन और खुशगवार माहौल में हुआ मुनक्कद। रिपोर्ट सुना रहे थे जावेद मेहरा। समी जम्मू कश्मीर में 18,000 करोड़ की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा जमाया गया है। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना यत्तू ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में कुल 17,27,241 कनाल और 8 मरले जमीन गैर कानूनी कब्जे में है, जिसमें से 15,39,662 कनाल अराजी को वापस हासिल किया गया है, जबकि अभी भी 3,13,645 कनाल पर गैर कानूनी कब्जा है। इधर सरकार ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की करोड़ों रुपए की बिलें सरकारी महकमों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अदा नहीं की गई हैं। इतलात के मुताबिक सबसे ज्यादा बकाया जात बाबा जंग कंपनी पर है और इसे 63.78 करोड़ की बिजली फीस अदा करना है, जबकि चीफ इंजीनियर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 56.96 करोड़, एक्सन पीएचई सोपोर को 45.84 करोड़, चीफ इंजीनियर जेएनके मिनरल्स 42.43 करोड़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई मैकेनिकल डिवीजन सोपोर 26.87 करोड़, जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड, लिफ्ट इरिगेशन लथपोरा, वाटर सप्लाई स्कीम टगनार को भी करोड़ रुपए की बिजली बिलें बकाया है। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में कई सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शहरी श्रीनगर में सयाहत को फरोग देना उनकी तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डल निशात, शालीमार, चश्मा शाही, परी महल, मुख्तलिफ जियारतगाह, मंदिर और गुरुद्वारे उनकी तरजीहात में शामिल हैं। वजीर आला ने MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन के एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के एसेट्स की तकसीम के बारे में भी वजाहत की। बात की वो दुरुस्त है। हम भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हुकूमत बनने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों को हाथ में लेना शुरू किया है जो थोड़ी देर से डिले होते आए हैं। लेकिन ऑनरेबल MLA साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें वक्त इसलिए लगा क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। साल 2000 के बाद पहली मरतबा जो है सिलेबस रिवाइज हो रहा है, मतलब 25 साल के बाद। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी। उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश थी कि हमारा जो ड्राफ्ट सिलेबस है इसकी सिलेबस के साथ जो है कंपेयर करके अगर कोई तब्दीली लानी होगी वो करें। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स शायद रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब से इनपुट्स वगैरह ली गई हैं। हमने दूसरे IAS अफसर से भी गुजारिश की कि वो इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। फाइनल ड्राफ्ट अब तैयार है। मैं ऑनरेबल मेंबर के जरिए से हाउस को अश्योर करना चाहता हूँ कि हम ये महीने के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये बांटने का काम जो है उसको हाथ में लें और कोशिश ये की गई थी कि एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे माहौल में जो एसेट्स, लायबिलिटीज़, बजट वगैरह वो ट्रांसफ़र हो। और इसके लिए प्रोसेस जो है
वो एक ऑफिशियल गैजेट के तहत पूरा करके 30 अक्टूबर 2020 को जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत ये सारे डिटेल्स जो हैं उस नोटिफिकेशन में है। मैं ये नोटिफिकेशन अपने कोलीग एमएलए साहब के साथ शेयर करूँगा। इनमें से जितनों को आपने यहाँ लिस्ट किया है, किसी को ज़मीन नहीं दी, किसी फर्म को नहीं, किसी इन्फ्लुएंशियल को नहीं, किसी ऐसी, हम ज़मीन जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज एस्टेट कायम करती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लीज पे जमीन देती है। अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे सवाल है या कोई खदशात है, मेहरबानी करके एक नया सवाल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को पोज कर लीजिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगी। सीनियर हमारे साथी एमएलए साहब की तरफ से सवाल आया था कि वेदर वी इंटेंड टू कॉन्स्टिट्यूट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर प्रमोशन ऑफ डल लेक एटसेट्रा। हमारा जवाब ये था कि एट प्रेजेंट देयर इज नो सच प्रपोजल। मतलब ये है कि हम टूरिज्म बोर्ड बनाने का नहीं सोच रहे हैं। टूरिज्म प्रमोशन का काम हम जरूर करेंगे। जिन जगहों का नाम सागर साहब ने सवाल के जरिए लिया है, डल लेक हो, डल लेक के आसपास निशात, शालीमार, हार्बर, चश्मशाही, परी महल, ये तो श्रीनगर की खासियत है। इन चीज़ों के अलावा श्रीनगर के पास है क्या? यही चीज़ जो है बेचते हैं, अपना डल लेक, नगीन लेक, हमारे मुगल गार्डन्स, हमारा ट्यूलिप गार्डन, हरी पर्वत फोर्ट, हमारी जो ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, यही तो हम प्रमोट करते हैं। तो हमारा जो है सारा फोकस श्रीनगर टूरिज्म के प्रमोशन पे इन चीज़ों के हवाले है जिनका आपने जिक्र किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमें बोर्ड कायम करने की जरूरत होगी। बोर्ड के अलावा टूरिज्म प्रमोशन हम कर लेंगे। वज़ीर आला मनोहर अब्दुल्ला का असम्बली में मुख्तलिफ सवालात का जवाब। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि मनोहर अब्दुल्ला सरकार ने खित्ते पीर पंजाल को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया है और न होगा। चाहे वो सयाहत का शोबा हो, बिजली, पानी या सड़क का मामला हो, किसी भी शोबे को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस खित्ते को सारे हुकूक देगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हम सिर्फ 4 महीनों में ही बिखरे हुए जम्मू कश्मीर को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में आया वो डगमगाया हुआ जम्मू कश्मीर था और अब इसे ठीक करना है। अब एक और मौजूद सामीन, हज 2025 के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने दूसरा तरबीती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया कि जिला शोपियान के मुंतखब आज़मीन हज के लिए दूसरा तरबीती प्रोग्राम 20 मार्च 2025 को तय किया गया है। इस सिलसिले में जिला शोपियान के तमाम मुंतखब आज़मीन हज को मुतल्लक किया जाता है कि वो 20 मार्च को सुबह 10 बजे जामिया टाक मस्जिद शोपियान में मुनक्कद होने वाले तरबीती प्रोग्राम में शमूलियत करें। इधर बारामूला से करामत कुईम ने खबर दी है कि बारामूला जिले में हज तरबीती प्रोग्राम 17 मार्च को मस्जिद बैतुल मुकर्रम बारामूला में मुनक्कद होगा। तमाम आज़मीन से कहा गया है कि वो सुबह 10 बजे मस्जिद बैतुल मुकर्रम में तशरीफ लाए। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम ने सरकार की तरफ से डेली वेजरों को मुस्तकिल करने के लिए वज़ीर आला मनोहर अब्दुल्ला की तरफ से असेंबली में चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी बनाने के ऐलान का वो खैर मकदम करते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से इल्तिवा में रखे गए बड़े मसले को हल करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। फयाज अहमद शबनम ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि ये कमेटी बराए नाम की कमेटी नहीं होगी, जिस तरह सबका हुकूमतों में किया गया था, और इसी वजह से ये मामला आज तक हल नहीं हो पाया। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। CIB and RC registered Erbofine Kultil Banan Wajin Company Total Energies Marketing India Private Limited च तमाम बाग वालन खतर दुआ करान ज तिहिंद बाग फलन तो फूलन तो बेरोजन तिहिंद बाग संजो सिकल तो रेड माइट निश बिल्कुल महफूज। याद थयो एर्बोफाइन कुलतिल छकने च जरा यूनिवर्सिटी ते खास कर छकने सिफारिश करमस।
यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है। कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है। TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार। TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर वक्त हो। समीर, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 रोज से रुक रुक कर बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा, गुरेज और बांडीपोरा के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी की खबरें हैं। सयाती मकाम गुलमर्ग समेत कुछ दीगर पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताज़ा बर्फबारी हुई है। दरियासना श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 मार्च तक मौसम खराब रहेगा, अलबत्ता 16 मार्च से 25 मार्च तक मौसम मजमूई तौर खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने लोगों से कहा कि उन इलाकों में जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात हैं में आने जाने में परहेज किया जाए। इस दौरान कुपवाड़ा से केरन, मत्सिल, बड़े नंबल, करना और दीगर पहाड़ी इलाकों की सड़कें बंद पड़ी। इतलात के मुताबिक डप्पल मत्सिल के एक नौजवान गौवर गनी मीर जो कि 25 साल है, चंडीगढ़ में दिल का दौरा पड़ने से अज्जा हुए थे और अब उनकी मैयत को पैदल घर पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि गौहर अहमद बी फार्मेसी का तालिब इल्म था और वो सर्टिफिकेट लेने के गर्ज से चंडीगढ़ गया था कि वहां दिल का दौरा पड़ा। इसी तरह करना में महकमा एनिमल हस्बेंड्री में तैनात एक असिस्टेंट सर्जन की वालिदा भी इंतकाल कर गई हैं और असिस्टेंट सर्जन वालिदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो पाए हैं क्योंकि राब्ता कटा हुआ है और उन्हें श्रीनगर आना था। इधर श्रीनगर, करगिल, मुगल शाहरा, सिंधन टाप, मरगन टाप और दीगर सड़कें भी आमतौर के लिए बंद है। इस दौरान एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान ने शेरबीन को बताया कि कुपवाड़ा के बाला इलाकों में लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि फिलहाल साधना टाप, जड़गली और फिरकियां टाप को पार करने की कोशिश न की जाए। देखिए मकसूद साहब, 15 मार्च तक फिलहाल बैड वेदर की प्रेडिक्शन है और इसका हम देख रहे हैं कि ऑफ एंड ऑन यहाँ बारिशें होती रहती हैं और जो हमारे हायर रीचेस हैं, जो जड़गली है, केरन है, फुर्कियां और साधना टाप है, जो बर्फबारी से ढके हुए हैं, वहाँ 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक बर्फबारी जारी है। और कल ही हमने वहाँ एक रिकी की तो वहाँ आर्मी और बीकन की नो ट्रैफिक जोन का इशारा आया और हमने एडवाइजरी भी जारी की है 24 घंटे के लिए कि नो पर्सन शुड वेंचर इनटू दैट एरिया, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अब तो नॉन सिक्योर चेन की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल रास्ता बंद है, नो ट्रैफिक मूवमेंट एट ऑल। और कल शाम को हमें एक वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन हमारा है, करना में ड्यूटी है, उसकी माँ की डेथ हो गई श्रीनगर में, तो ही कुड नॉट अटेंड द लास्ट राइट क्योंकि वो टंगडार में ड्यूटी है तो वहाँ ही फंसा हुआ है। तो दिन में 4 बार बारिशें होती है, 4 बार धूप आता है। हिली एरियाज में जबरदस्त कंडीशन बैड है और बैड वेदर है, बर्फबारी जारी और सारी है, लेकिन हमारी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन साथ साथ में लगी रहती है, बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर इट ऑफ क्योंकि अभी मौसम इम्प्रूव नहीं हो रहा है और बर्फबारी और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन और clearance operations can be done only when the weather improves, the advisory is over, the weather considerably improves, फिर हम ये इसकी कर सकते हैं, क्लियरेंस क्या अलाउ कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। लेकिन इन द मीन वाइल हमारा मुश्किल एरिया होनहार लड़का गौहर गिनी मीर, सन ऑफ अब्दुल गिनी मीर और दपल मुश्किल, ये 25 साल नौजवान है। ये चंडीगढ़ में इसने 4 साल का बी फार्मेसी कोर्स किया और इसको कॉल आई थी 2-3 दिन पहले कि आपकी डिग्री कंप्लीट है बी फार्मेसी की। ये अपने भाई के साथ चला गया और चंडीगढ़ में 2 दिन रहने के बाद जब ये घर की तरफ टेस्ट हो गया और उसकी मौत वाक़ा हो गई, तो डेड बॉडी 2 दिन में हमें यहाँ पहुंची आज 8 बजे। तो 8 बजे से वो इस वक्त डबल मिसल की तरह रवा दवा हुए सोमो में, गाड़ी में, लेकिन जड़गली से आगे ये गाड़ी नहीं जा पाई। तो उन्होंने फिर वो बेड का इस्तेमाल किया जथवान से, तो डेड बॉडी को बाई फुट लेके 10-20 आदमी एक दूसरे को रिप्लेस करके तो अपने हवाई वतन की तरफ, तो रोड बिल्कुल भी बंद है, लेकिन फिलहाल उन्होंने मैन्युअली ये रास्ता निकाला और डेड बॉडी को अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 मार्च से मौसम में बेहतरी आएगी, तो आपकी मशीनरी बिल्कुल तैयार है कि 16 के बाद जो हमारे 13 तहसील हैं इस वक्त थ्रू है, कनेक्टेड है, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा फूड एंड सप्लाईज, हमारा स्कूल चल रहे हैं। हमारी जो 13 तहसील, हमारे 16 तहसील हैं टोटल, 3 हमारी तहसील इस वक्त कट ऑफ है, एक करना, एक केरन और एक मुश्किल।
ताकि लोग रोजा रखते हैं, बाजार जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज वाल हैं, कट ऑफ बेल्ट हैं, वो केरन करना और मुश्किल है। उनके लिए एडवाइजरी है कि डोंट ट्राई टू स्नीक इनटू दिस साइड, डोंट ट्राई टू वेंचर, डोंट मूव, क्योंकि बर्फानी तोदा आने से खुदा न खासा और जाने चली जाएंगी। उनके पास हर किस्म की सहूलियत वहाँ पहुँचाई गई है। ये थे एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सूबा इंतजामिया से बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए इलाकों की सड़कें फौरी तौर बहाल करने पर जोर दिया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इंतजामिया से कहा है कि वो बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए इलाकों और देहात के साथ राब्ता बहाल करने के लिए हंगामी बुनियाद पर काम करें। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए भी मशीनरी को काम पर लगाया जाए। इमरान नबी डार ने माह सियाम के दौरान सड़क राब्तों और बिजली की बहाली पर जोर दिया है। मोहल्ला गुलशनाबाद, लालू, सतगिरी बाग और मुश्ताक कॉलोनी, हैदरपोरा, श्रीनगर से मकामी बाशिंदों ने शेरबीन को बताया कि नारकरा बड़गाम के साथ जोड़ने वाली सड़क पर ड्रेनेज निजाम नाकारा हुआ है और इस वजह से बदराव का सारा पानी सड़क और आसपास की लिंक रोड्स पे जमा हो जाता है। इधर बारिशों के दिनों में यहाँ से गुजरना भी महाल हो जाता है और बच्चे भी स्कूल जाने से कतराते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बदरों की निकासी के लिए अगरचे वहाँ एक पंप शेड भी बनाया गया है, मगर वो भी कई साल से बेकार है और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इस बारे में याददाश्त भी दी गई, मगर उनकी तरफ से जमीनी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुतासर लोगों ने सूबाई कमिश्नर और महकमा ड्रेनेज से अपील की है कि इस मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। समीर भारी बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिराने के खतरात के पेश नजर सब जिला मजिस्ट्रेट गुरेज मुख्तार अहमद अहंगर की तरफ से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया है और कहा गया कि शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिरने के खतरात के पेश नजर गुरेज सब डिवीजन के तमाम स्कूलों को 15 मार्च तक बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है ताकि तलबा और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसमी हालात की वजह से तलबा और स्कूली अमले की नकल अमल पर बुरी तरह असर पड़ेगा। इधर मौसमी सूरत के पेश नजर करगिल के स्कूलों में सरमाई तातीलात 23 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं। करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने जिले के तमाम सरकारी और निजी इदारों के लिए मौसमी सरमा की तातीलात में तोसी की हिदायत दी है और इस तरह अब करगिल जिले में 24 मार्च को दोबारा स्कूल खुलेंगे। राजौरी से मिली इत्तलात के मुताबिक BSF की गाड़ी को हादसा पेश आया जिस वजह से 3 एहलकार जख्मी हुए। यह हादसा फालियान के नजदीक पेश आया है। पहलगाम इलाके में आज लैंडस्लाइड्स के बस कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक लैंडस्लाइड्स आज बाद दोपहर पहलगाम के सुमो स्टैंड के नजदीक आए और इस वजह से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे थे। एसोसिएशन का कहना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पेश किया गया लेकिन इसमें जिस्मानी तौर माजूर अफराद को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ये बजट उन वादों और यकीनदानियों के बरक्स है जो उनके साथ किए गए थे। समीन सरहदी जिला कुपवाड़ा के जचलडारा वडीपुरा में आग की एक होलनाक वारदात में 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जचलडारा वडीपुरा में आग नमूदार हुई जिसने आनन फानन कई ढांचों को अपनी लपेट में लिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग के इस हादसे में 4 दुकानें और 2 कमरों को नुकसान पहुंचा है। समीन इलाका रफियाबाद के हब डांगरपुरा और बहरामपुरा के बाशिंदों ने 1980 में तामीर की गई नहर के हवाले से शिकायत की है कि इस नहर का मकसद दोनों इलाकों के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कनाल जरी जमीन को पानी फराहम करना था। ताम बदकिस्मती से ये नहर अब नाकारा हो गई है और इस तरह इसका इस्तेमाल मनफी है और नहर से हब डांगरपुरा, बहरामपुरा और रहमत आबाद की जरी जमीन को आपाशी के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जबकि आपाशी के लिए तामीर होने वाली इस नहर की हालत बदतरीन हो चुकी है। यहाँ खुदरो दरख्त और कांटेदार झाड़ियां उगाई हैं जिस वजह से ये नहर किसी वीराने का सा मंजर पेश करती है। मकामिलों के मुताबिक वो अब अपने खेतों में जाने से भी कतराते हैं क्योंकि इन झाड़ियों से कभी भी कोई जंगली जानवर नमूदार हो सकता है। मकामिलों का कहना है कि हब डांगरपुरा, बहरामपुरा और रहमताबाद की जरी जमीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, इसलिए हब डांगरपुरा, बहरामपुरा और रहमताबाद की आबादी वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार से मुतालबा करती है कि इस नहर को फौरी तौर काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और किसानों को आपाशी का पानी दस्तयाब कराया जाए। मकामी लोगों ने इन बस्तियों को जोड़ने के लिए एक सड़क तामीर करने का भी मुतालबा किया है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने आज भटपुरा शोपियान जाकर नामवर समाजी शख्सियत मरहूम अब्दुर्रहमान भट्ट के आबाई घर जाकर सोगवारान से ताज़ियत की। महबूब मुफ्ती ने मरहूम के फर्जंद शबीर अहमद भट्ट की भी ढारस बांधी। महबूब मुफ्ती के हमरा जिला सदर शोपियान हाजी गुलाम मुहिद्दीन वच्ची और दीगर ज़ुमा भी थे। वाज़रे के मास्टर अब्दुर्रहमान भट्ट का
मुख्तसर इलालत के बाद गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ था। और अब एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मलिक। जिला रियासी के सब डिवीजन माहौर और सब डिवीजन दरमाड़ी के मुतादिद इलाके आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि 21वीं सदी में भी वो अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरा इलाकों में डोगा, कैंथी, न्योह, शबरास, कुंडरदान बी, माजरा कुंड, शेरगढ़ी, ममनकोट, चुंगरा, अपर तूली, कालाबान, अपर फगोली, बगुदास, चटी बट्टी सरल शामिल है, जहां के बाशिंदे इस जदीद दौर में भी लालटीन, लकड़ी और मोमबत्तियां जलाकर घरों को रोशन करते हैं। लोगों का कहना है कि जिला में बिजली पैदा करने के लिए अपना पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आवाम खुद बिजली से महरूम है, जो एक संगीन नाइंसाफी है। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाका के तुलबा सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से वो रात के वक्त तालीम हासिल नहीं कर सकते। खास तौर पर इम्तिहानात के दौरान तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कारोबारी हजरात, दुकानदार और किसान भी इस मसले से परेशान है। वो जदीद ज़राई तरीकों और दिगर कामों में बिजली की अदम दस्तियाबी के बाइस पीछे रह रहे हैं। चट्टी बट्टी सरल के लोगों का कहना है कि वहाँ पर 200 से ज्यादा कुंबे बिजली से महरूम है और कुछ लोगों ने खुद लकड़ी के खंबे खड़े करके घरों तक बिजली पहुंचाई है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि अगरचे जम्मू कश्मीर को 2019 में सबागे स्कीम के तहत 100% बिजली फराहम करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन जमीनी सतह यूं है कि सैकड़ों कुंबे आज भी बिजली का बल्ब देखने को तरस रहे हैं। ये थे रियासी से जाहिद मलिक। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। कानून साज असेंबली की आज की याद है वो यकबस्ता सर्दियाँ, वो चिल्लई कलां की सर्दी। हमारे यहाँ जैसे सब कुछ गहरी नींद में चला जाता था, जमीन जम जाती थी जैसे, घर बंद, काम का रुकना और सपने भी जैसे हाइबरनेशन में चले जाते थे। मगर अब नहीं, अब नए दौर का आगाज हो चुका है। चिले कलान, चिले खुर्द या चिले बच्चा, हर मौसम में रहे मजबूती का वादा बरकरार। जहाँ यकीन वहाँ हम। TCI मैक्स सीमेंट है हर मौसम का मजबूत साथी, क्योंकि मैक्स पर यकीन का मौसम नहीं बदलता, हर मौसम में